Okay, and then we say import pandas as PD, and then we create a data frame. How do we create a data frame? We first say df or a data frame or any variable equals to PD, that is pandas dot data frame. So this is inbuilt function. In it, what you have added two elements. First, the array that you have generated. Yeah, first the array that you have generated, and second thing, the column name. Okay, what the second thing that you have added, which is a column name. Okay. So you set up a column name as column name one. You can set up anything. So you can set up a column name using this. Column names equals to, you need to use list and a string inside. Okay. Then when you run this, your column name comes here. All the your uh, array values comes here, and these are the indices. Okay, these are the indices. These are your column values: 2, 3, 4, 6, 6, Ram, Sham. Okay. So if I want to run this, I will run like this, like this, like this, and you will get a data frame. You can also say values, so you will get values like this. The column name changes. You can also add another Ram Sham, Ghanshyam. Okay. If you change the array and if you again change this, you will get Ghanshyam also in the your data frame. Okay. So this is how we create data frames. Okay. This is how we create data frames, right? Right. So I think it was there. Let's go. Next thing that we have saw, so this is also data frames inbuilt function. If you say df, okay, df meaning this df, okay, this data frame dot info, okay, so you will get all the information regarding your, it says कि pandas की core के अंदर के frame के अंदर में data frame है. Okay, so it will give you a location and it will say the class is a data frame. So this is a data frame. Data frame क्या होता है? It is a box, like it's like a Excel sheet. Okay, it's like a spreadsheet. ठीक है कि वहाँ पर rows होते हैं, columns होते हैं, right? That's it. इसके अलावा कुछ नहीं. And it says its range has 6 entries. Uh, like now it will say 7 entries because we have added Gansha. Okay. एंड इट विल से देयर इज नो नल वैल्यू. इसके अंदर कोई नल वैल्यू नहीं है. नल यानी नॉन जीरो, नॉन नॉन एलिमेंट, नथिंग. ओके. एंड द डेटा टाइप इज द डी टाइप ऑफ एलिमेंट्स. इन एलिमेंट का डी टाइप ऑब्जेक्ट है, बिकॉज वी सेट दिस डी टाइप इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट. ठीक है, अगर हम इसको इंटीजर सेट किया होता या स्ट्रिंग सेट किया होता, इट वुड हैव कम स्ट्रिंग. ओके. एंड सम मेमोरी सेज कि 188 बाइट्स इसने इस डेटा फ्रेम ने कंज्यूम किया है. ठीक है. So one question that I have given to students yesterday, so I have given this list and I asked them to change into array and change into a data frame. So what the students did, they took a variable, they said np.array, उसके अंदर ये list pass कर दिया, you got this array. Then you said df dot pandas dot data frame, you pass this array here and you pass the column name as values. Okay, so you got this another data frame. Later on, we saw another function that is called as reshape. Okay. So how do we know what is reshape? So first I took this np.array and इसके अंदर कुछ random numbers लिए, उनका length 12 है. These are around 12 numbers. ठीक है, 3, 6 and 6. Okay. Then my array looks like this. Then I started with, I have done this. Then I started with this. Okay, what I have done, I've said print, or I do not have to say print even. I will say array, ये array, ठीक है, dot reshape. So reshape is a inbuilt function of NumPy, right? Reshape is an inbuilt function of what? NumPy. So makes sense. Reshape meaning it is giving the array a reshape, right? It is giving an array another shape. Okay, so यहाँ पर हम लिख देते हैं it gives an array
shape, ठीक है, shape or another shape. So usually this gives 2D or three-dimensional shapes. Okay. So first, now this is 1D, right? One dimensional. You can see there is only one basis. Now this has a capability to give convert these array into two dimension or three dimensionals also. So first this converts into a two dimensional. How? So you say मुझे एक लिस्ट चाहिए उसके अंदर 12 एलिमेंट्स चाहिए. Okay, what you have said? I need one list. I need 12 elements. So you can see this is a single one list. You got 12 elements in it. Okay. So later on, if you ask, I need 12 lists. What you have said? I need 12 lists, and each list should contain one element. So if I run this, you can see you got these 12 smaller lists. ठीक है, ये एक लिस्ट हो गया, एक और each list has what, one element in it. ठीक है. Similarly you can say I need three list. हर एक लिस्ट के अंदर चार एलिमेंट चाहिए. ठीक है. We all are doing on this. We all the operations are doing on this array. Okay. So what you are saying, you need you need you need three lists. So you got this one list, second list, third list, and each element has four elements. But all these things, if you see, these are multiplication of 12 elements. 4 into 3, 12. 12 into 1, 12. 1 into 12, 12. Because we have 12 elements. Okay? So you need to make sure that these are 12 only. Okay? 12 meaning अगर ये आपका 6 elements रहता तो you can think of multiplication of 6 only. Okay? Going ahead, so another thing we said कि I need four list. I need four list. उसके अंदर I need three elements. You can see one list, two list, three list, four list, and the elements are three. Okay, you can also say 2 by 6. So I need two lists, six element. You can also say 6 by 2, six list, and two elements. Okay, and two elements. So I have given one more example. So where I have took only four elements. ठीक है, for a array. एक array ले लिया, उसके अंदर four elements ले ली. And how many reshape I can finally get? So 2 by 2, right? 4 by 1, yeah, 1 by 4, right? Like these. And we have also seen how to get three-dimensional arrays or three-dimensional, yes, three-dimensional array. Okay, so I hope until this all clear. Until this all clear. Let me put the charging. Until this all clear. Okay. Okay. So until now we were getting these two-dimensional array. Okay, until this we were getting this two-dimensional array. Now what we want is three-dimensional array. So three-dimensional array में what you have to mention like this. Array dot reshape. वो again we are dealing with 12 वो 12 number 12 elements का जो array था this one. Again we are dealing with this. So I'm saying array dot reshape. So I'm saying I need two lists. So you can see यहाँ पर एक बड़ी list मिली और ये एक बड़ी list मिली. ठीक है. Inside this I need more three lists. So one list, two list, three list, and one list, two list, three list. And I'm also saying inside that I need what? Inside that I need two elements. One element, one, two, one, two, one, two, one, two, and so on. Okay. So another example we have seen array dot reshape. मुझे तीन बड़ी लिस्ट चाहिए. So 1 2 3 1 2 3 1 2 3, not 1 2 3. This is 1, this is 2, this is 3. बड़ी लिस्ट. Okay. This is three dimensional. ये one dimension के अंदर जो भी है, like this is a body list, this is exactly a body list, and this is a body. And we are saying inside this three lists, I need two more lists.
तो ये दो आ गए, ये दो आ गए, ये दो आ गए, and so on. Okay, and inside that I said I need two elements. Two elements, one, two, one, two, one, two, and so on. Okay. Another example we have given. I need two body list, दो छोटी list, तीन elements. Two body list, okay. दो छोटी list, one, two, and one, two, and it should have three elements. So again, if you see this, these are multiplication of 12. Okay, 3 into 2, 6, 6, 6, 6 into 2, 12. Again 12 and again 12. Okay, because we are dealing with how many numbers? 12 digits. Okay, we are dealing with 12 digits. Got it? So, uh, this is how it is. Okay, this is how it is. So now, mm, if I don't follow that, okay, if I don't follow that, I have 12 numbers, but I have said कि मुझे एक बड़ी लिस्ट दे दो, उसके अंदर दो छोटी लिस्ट दे देना, और उसके अंदर तीन एलिमेंट्स पास कर देना. सो हाउ ये कैसे दिखेगा? एक बड़ी लिस्ट, इमेजिन कि एक बड़ी लिस्ट है, उसके अंदर दो छोटी लिस्ट है, ठीक है. तो उसके अंदर कितने एलिमेंट्स बैठने चाहिए? सिंस वी हैव हाउ मेनी एलिमेंट्स, वी हैव 12 एलिमेंट्स, तो उसके अंदर सिक्स सिक्स एलिमेंट्स बैठने चाहिए, ठीक है. तो मीनिंग इमेजिन करो, उसके अंदर एक बड़ी लिस्ट है, लाइक इमेजिन, ऐसे देख ही लेना, एक बड़ी लिस्ट है, ये बड़ी लिस्ट है, उसके अंदर दो छोटी लिस्ट है, ठीक है. उनके अंदर सिक्स सिक्स अगर एलिमेंट में पास कर दे तो मेरे 12 एलिमेंट्स हो जाएंगे. बट इफ आई somehow do not pass 12 elements and if I only pass 6 elements, 5 elements, so it will say it is out of shape or it is not in the size of 12, right? So that's why I have given this some negative error example as well. Okay. So later we have also seen how to convert array into a list. So previously we have seen how to convert list. ये मेरी list थी, उसको array में कैसे convert करना है? I just have to say np.array और उस list को pass कर देनी है. Then I get this array. But now we also seen how to convert the array into a list. So the very basic thing I thought कि ऐसे कर सकते हैं कि list of array. क्या कर दिया? ये जो array था उसको list of array में convert करने देखा. So it become a list, but the list looks like this. उसके अंदर np.integer, np.integer, np.integer 64 आ रहा है. And I also try to append, तो list वाले function तो चल रहे. It means this is a list, but there is a function called toList. So I have taken a variable, उसके अंदर I have said array dot toList, मीनिंग आई एम टेलिंग द अरे कि इसको लिस्ट में कन्वर्ट कर दो, ठीक है. बट आई एम सेइंग इसको लिस्ट में कन्वर्ट कर दो. सो आई गॉट द लिस्ट. पहले मेरा अरे कुछ ऐसा दिखता था, नाउ लुक्स लाइक दिस. So again I've taken a second example, array equals to np.array, और ये array को, ये list को मैंने array में convert कर दिया. So my array used to look like this. Then I said array dot to list, so that changed into a list again. Okay, a list again. So this was about yesterday, and we kind of have revised it very slowly. So I'm slowly or gradually explaining all these things so that you don't miss out. Okay, so try to attend every lecture, and if you understood this, type clear so that we should go to the next lecture. Type clear in the comments, guys, quickly. So every day we are practicing 3 to 4 times, and that that is important also, but it is also important that you practice it by yourself. So we will go for NumPy 3. Okay, NumPy 3. So NumPy 3 के अंदर सबसे पहले what we will see, how to
create an empty array. Yeah, how to create an empty array. So how many? Yes, clear, clear, good. Other students also participate. So on a very first day, we have seen this. Create a random number generation. So आज हम यही ज़्यादा सीखेंगे, ठीक है? The larger topic is the larger topic is uh, the larger topic is how to create a random number generation. So सबसे पहले तो हम सीखेंगे how to create an empty array, ठीक है? array तो हमें सबको पता है, right? numbers equals to, सबसे पहले हमें import क्या करना होगा? import numpy as np, ठीक है? numpy as np. So I am saying np dot array और उसके अंदर I am passing a list, ठीक है? So I've been doing this since 3 to 4 days, right? So this is how I'm getting the array. But we have never taught about how do we create an empty array. Sometimes we may get an array which should be empty, right? So I can simply say empty array. So this is a variable, okay? This is a variable and I will say np dot array. What I will say np dot array. And if I simply pass this one, if I say empty dot array, so we should get array as empty, ठीक है? इतना ही था गाइस, ठीक है? क्योंकि और यहाँ पर डी टाइप क्या आ रहा है, मुझे फ्लोट आ रहा है. So you can also change the d type. How do we change the d type? You can also say यहाँ पर d type equals to कैपिटल में I कह दो, ठीक है? और ये कॉमा कह दो यहाँ पर. कैपिटल I मीनिंग इंटीजर, ठीक है? इंटीजर. So this is 32, int 32, and if I say int ही लिखा था क्या पिछली बार हमने? So this int is a 64 integer, ठीक है? So this is the size of that integer. 64 is a huge size और यहाँ पर मैं simply I लिख देता हूँ. So this is a 32, okay? 32. You have a, if you have Windows PC, it is either 64 bits or 32 bits. So it is like that, okay? 60, so we have like 8 bits, 32 bits, 64 bits, okay? Going ahead, so I hope there is nothing more than this in the creating an empty array, okay? So hope this is clear. अगर नहीं clear है तो type no in the comments or repeat in the comments, okay? Next we are going to see, how to create an array of matrix of zeros, ठीक है? जीरो मीनिंग जीरो, ये वाला जीरो, ठीक है? ये दिस जीरो. सो हाउ टू क्रिएट, सो हम रैंडम नंबर जनरेशन देखने वाले हैं, ठीक है? सबसे पहले तो हमने देख लिया हाउ टू क्रिएट एन एम्प्टी एरे. एम्प्टी एरे के लिए बस मुझे एरे के अंदर कुछ पास ही नहीं करना है, या फिर मुझे डेटा टाइप में जो भी पास कर सकता हूँ, आई कैन पास इट डिफरेंट डेटा टाइप्स एंड ऑल. Second thing I am going to learn is how to create an array of matrix or array कह लो of zeros, ठीक है? of zeros. तो सबसे पहले एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं. लेट्स से array equals to np डॉट, आपको कहना है zeros, ठीक है? तो here you can see three अलग अलग numbers functions, इसके अंदर के ये zeros ले लेना. Or you need to mention how many zeros you want. Let's say you want 9 zeros. Okay, 9 zeros. If you ask, you will get the array of 9 zeros. Isn't it easy, guys? Right? Isn't it easy? You can also create array equals to np dot zeros. और मुझे फॉर एग्जांपल 5 arrays ही चाहिए, एंड आई एम सेइंग ये जो अभी रैंडमली अगर आप जब भी कुछ भी यू विल बी क्रिएटिंग एरे रैंडमली, इट विल कंसिडर व्हाट फ्लोट ओनली, ठीक है? यहाँ पर हमने एम्प्टी एरे भी जनरेट किया था. देन ऑल्सो इट सेड फ्लोट 65, okay? If you also take the type of this, it will give you a float. So if you want
some integer again, for example, like this जो हमने previously दिया था. And if I ask, so I will get array of what? Integers. ठीक है. Previously these are floats, these are now integers. Okay. Then one more example I would like to give, and then I will give you a question. So now you have seen this is a one-dimensional array. We can also create a two-dimensional array. How do we create it? So this is a 1D. So let's create two-dimensional. So first you will say np dot zeros, and then you will say I need 5 lists and I need 4 0. ठीक है, simple है. I need 5 lists, I need 4 zeros. Okay, and उनका डेटा टाइप में क्या कर देता हूँ, डी टाइप इक्वल्स टू इंटीजर. Okay, d type equals to integer. Now if I ask this array, so you'll see I need 5 lists, 1, 3, 5, and I should get 4 elements. Okay, I should get 4 elements. So these are 4 elements, 1, 2, 3. Our data type यहाँ पर मैंने integer लिया है, that's why these are not floats. Okay, okay. Have you got this one? कि हमने how did we created matrix of 0? Matrix of 0. If you got this, type hero. If you got this, type hero, guys. Okay, so if you have got this, एक ही बंदे को आया है क्या? Everyone, let me know if you have got this or not. अगर नहीं समझाए तो नहीं समझाए तो 0 डाल दो. If you have got this, then hero. If you don't got this, then hero. Okay, and if you have got this, I need you to create this matrix. मतलब कोड लिख दो. What is mean by d type you? हाँ, ठीक है, good. 0. Okay, understood. Now like I'm getting the idea कि नहीं समझ में आया. ठीक है. So again, so what we are specifying is d type. D types means data type. जो हमने we have practiced this on a very first day यहाँ पर. ठीक है, यहाँ पर. So every time you can see d type equals to some u64 आ रहा है, और यहाँ पर भी आप चेक करोगे तो हमने खुद स्पेसिफाई किया यू डी टाइप इक्वल टू इंटीजर, डी टाइप्स इक्वल्स टू कॉम्प्लेक्स, डी टाइप्स इक्वल्स टू फ्लोट, डी टाइप्स इक्वल्स टू स्ट्रिंग. ठीक है, डी टाइप इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट. ओके, डी टाइप इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट. सो लेट्स अंडरस्टैंड. सो व्हाट इज दिस डी टाइप गाइस? लाइक यू आर सेइंग कि डी टाइप कुछ तो है. यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर ही सिखाते हैं आपको what is d type. Okay, so d type क्या होता है? D type is equals to, it's a data type. ठीक है, data type. D type होता है data type. ठीक है. How many data types are there? First there is a string. ठीक है, first there is a string. So it looks like this. So anything which is inside this braces is called as string. ठीक है. Then होता है integer. integer इंटीजर. ओके, इंटीजर इसको लिखा जाता है ऐसे इंट, एंड ये ऐसा होता है. ठीक है, नंबर्स होता है होल नंबर्स. इसको कैसे लिखा जाता है? इसको लिखा जाता है str. ठीक है, str, और ये int होता है इंट. ठीक है, देन होता है फ्लोट. ठीक है, देन होता है देयर इज अ फ्लोट. फ्लोट कैसे लिखा जाता है? ऐसे, एंड वो होता है 4.9. तो देयर इज अ डेसिमल इन इट. ठीक है, देन होता है बुलियन. ओके, उसको कैसे लिखा जाता है? ऐसे, बुल, एंड ये होता है इधर ट्रू और फॉल्स. ठीक है, ये होता है इधर ट्रू और फॉल्स. देन देयर इज अ डेटा टाइप कॉल्ड कॉम्प्लेक्स.
ओके, कॉम्प्लेक्स कैसे लिखा जाता है? ऐसे डायरेक्टली, ठीक है। और वो कैसे होता है? इट लुक्स लाइक 6 + 0 j, ठीक है, 0 लिखना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज अ रियल पार्ट, दिस इज एन इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। सो वी हैव कवर्ड दिस एवरीथिंग इन दीज वेरिएबल स्ट्रिंग, कहीं पे फर्स्ट डे पे हमने कवर किया है, ठीक है। So you need to go and practice that also. And I think there is a object जो हमने सीखा है. So this can be anything. This can be anything. This can be anything. Okay, this can be anything. Now मैं इसको string में डाल देता हूँ. This can be anything. Why? Because everything is called as object. Everything, these things are called as object. अभी उसके अंदर there are these bytes. Okay, and bytes. So bytes के type होते हैं. There are two types of bytes. Okay, there are not really two. There are 3 4 types. एक होता है 8 bytes. एक होता है 16 bytes. एक होता है 32 bytes. एक होता है 64 bytes. ठीक है, 64 bytes. ठीक है, these are the types of bytes. ठीक है, these are the types. So our system or our computer runs on bytes, bits per second. Bits per second कहा जाता है बहुत बार कि how this machine will run. So there is this RAM, there is this disk. Okay, इसके यहाँ पर भी कुछ ना कुछ bytes लिखा रहेगा. Okay. Anyway, so these systems are run. This system runs on a bytes. So if you check, if you have a Windows laptop, तो वो उसके पास अभी this is तो Mac है, तो इसके ऊपर bytes नहीं लिखा रहेगा शायद. But if you have Windows, तो उसके ऊपर bits लिखा होता है, ठीक है, bytes लिखा होता है somewhere, ठीक है. इसके अंदर तो नहीं है, लेकिन Windows के अंदर स्पेशली लिखा रहता है कि how many bytes or bits of laptop is. So usually we prefer to buy 64 bits. Then there is 32 bits, 16 bits, 8 bits. So this consumes some. This is nothing but a uh, a memory. ठीक है, a memory. So memory meaning अभी ये हो गया bytes. इसके ऊपर क्या रहेगा? इसके ऊपर क्या रहेगा? मेगाबाइट्स. मेगाबाइट्स. ये मेगाबाइट्स तो कहीं पे सुने सुनेला लग रहा है. ये होता है एमबी. ठीक है, हम डाउनलोड करते हैं 100 MB ऑफ मूवी. मूवी तो नहीं होता है, 10 MB ऑफ गाना कह लो, ठीक है. देन होता है व्हाट? जीबी, गीगाबाइट. गीगाबाइट. ओके, सो दैट इज लाइक मैंने 1 GB का मूवी डाउनलोड कर, राइट. सो दीज आर थिंग्स, इनके आगे ये होता है. सो एक एक मेगाबाइट, क्या ये लॉजिक भी पता नहीं. एक 172 बाइट्स इक्वल्स टू व्हाट? 1 MB. Okay, 1 MB. Again 1072 megabytes equals to 1 GB. गीगाबाइट, ठीक है. सो ये लॉजिक होता है, ये कैलकुलेशंस है इनके, ठीक है. दीज आर सम कैलकुलेशंस. सो दीज आर सम टेक्निकल थिंग्स दैट वी शुड ऑल्सो नो कि एक बाइट, इतने बाइट्स, 1000 बाइट्स होते हैं 1 MB. 1000 मेगाबाइट होते हैं 1 GB. 1000 मेगाबाइट, 1000 गीगाबाइट होते हैं 1 TB. ओके, देयर इज लाइक दिस. उसके बाद टेराबाइट्स भी होते हैं, and उसको टीबी कहा जाता है, टीबी. ओके, एंड देन देयर इज अ हेक्साबाइट, हेक्साबाइट्स. ठीक है, यहाँ तक हम यूजुअली पहुंचते नहीं है, उसको एचबी कहा जाता है, ठीक है. सो दीज आर कॉल्ड मेमोरीज. नाउ व्हेन वी सी दिस int 32, मीनिंग दिस 32 बाइट्स है, ठीक है. अगर मैं इसको इंट कह दे सिंपली, अच्छा ये आए नहीं, इसको मैं ऑब्जेक्ट कह दूँ, ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है. सो अभी मैं कैपिटल आई कर दूँ, तो ये इंट 32 क्या रहेगा? दिस
32 बाइट्स। ओके, अभी प्रीवियस लेक्चर्स में हम इंट, दिस इज अ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के लिए कुछ इस तरीके से आता है। सो दीज आर मेमोरीज, ठीक है, दीज आर मेमोरीज। ये इसका स्पेशली आ नहीं रहा है, बट यूजुअली वी आल्सो गेट इंट व्हाट 64 भी आता है, ठीक है, दिस इज इंट 64 पे आता है। सो दीज आर नथिंग बट बाइट्स, ठीक है, मेमोरी। सो जब मैं कह दूं आई, तो ये 32 इंच में आ जाएगा, मीनिंग दिस विल बी of size 32 bits only. Sometimes you will get 64, ये float 64 हो गया, int 32 हो गया यार। अरे यार, है नहीं क्या अपने पास एक भी एग्जाम्पल? हाँ, int 64 हो गया, ठीक है, तो अभी ये 64 बाइट हो गया। सो इसका मीनिंग ये है कि देखो, जितना ज्यादा साइज उतना स्लो मेमोरी, ठीक है, आपका एप्लीकेशन उतना स्लो होगा। सो दैट इज वाई पीपल और डेटा साइंटिस्ट और इवन इंजीनियर्स प्रेफर व्हाट, they prefer your application should be light enough to run fast, ठीक है। सो अभी इवन जो आपने डीप सीख देखा होगा, डीप सीख, सो दिस इज ए लार्ज लैंग्वेज मॉडल, ठीक है, दिस इज अ चाइनीज लार्ज लैंग्वेज मॉडल। एंड इन्होंने जो चैट जीपीटी है, ठीक है, चैट जीपीटी, so चैट जीपीटी इज एन यूएस बेस्ड मॉडल, यूएस बेस्ड कंपनी। सो इन्होंने बिलियंस ऑफ लाइक मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करके एक चैट जीपीटी बनाया, उसको ट्रेन किया। सो दे ट्रेंड ऑन व्हाट डेटा, दे ट्रेंड ऑन दिस 64 बाइट्स, 32 बाइट्स। सो इस इनका साइज ज्यादा हो गया, उनको कॉस्ट ज्यादा लग गया ट्रेनिंग का। बट दीज फोक्स, चाइनीज फोक्स, स्मार्ट एज यूजुअल, उन्होंने क्या किया, लाइक यहाँ पर इन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करे, इन्होंने लाइक कॉस्ट, लेकिन इन्होंने अराउंड 5-6 मिलियन डॉलर्स खर्च किए, सिर्फ 6 मिलियन डॉलर्स, ठीक है, 6 मिलियन डॉलर्स। सो दे गॉट इट। हाँ, यहाँ पर भी कहीं पे लिखा रहेगा कि उन्होंने वो सब ट्रेन किया था 8 बाइट्स पे, वट एवर दे हैव ट्रेंड, दे ट्रेंड ऑन 8 बाइट्स। सो दे टुक देयर डेटा टाइप्स, जो भी ये डेटा टाइप्स है उनको 8 बाइट्स पे लेके आए। एंड समहाउ दे, वो इन्होंने इन्होंने जो करोड्स ऑफ रुपीज मेकिंग मेकिंग चैट चैट जीपीटी 4.1 मॉडल, मॉडल मेकिंग प्राइस शायद नहीं आए या आए, लेट्स सी। सो दिस इज अराउंड, नहीं दिया है, ठीक है, तो ये सब्सक्रिप्शन दिया है सिर्फ। तो एनीवेज, दीज पीपल ओनली टुक इट 6 मिलियन, और इन्होंने बहुत ज्यादा लिया था, ठीक है, चैट जीपीटी वालों ने बहुत ज्यादा लिया। So why, this is why these data types are important, D types are important, okay? So I hope this is clear. मैं ज़्यादा ही लंबा story लिखे गया, but these are things that you should also know, okay? These are things that you should also know कि ये बस जो दिख रहा है, this is not very small thing, this is a very deep thing. So when you will be go into the companies जहाँ पर आपका मैनेजर कहेगा क्या, my your app should be light enough, so you will change your D type into what, small integers 32 and all। यहाँ पर आप स्पेसिफिकली डिफाइन भी कर सकते हैं, लेकिन आई डोंट थिंक सो दिस सपोर्ट्स और नॉट, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर, द स्टोरी गॉट, if this is clear, type clear. And Suhas meanwhile solved this problem. Suhas meanwhile solved this problem. So the problem was this: np dot array, so np is equals to 0, he said 5 9, और d type इन्होंने integer डाल दिया, so it is, it looks like this, so this is the correct answer. Clear, clear, this is clear, clear. Okay, are you clear what is mean by d type 32? तो इसका ही बताया, इसका फिर से बता देता हूँ फॉर दोज हु डू नॉट अंडरस्टैंड। तो मुझे एक एनपी एरे बनाना है, सबसे पहले मुझे एरे बनाना था एम्प्टी टाइप का, जिसमें कुछ भी नहीं रहना चाहिए, तो आई गॉट एम्प्टी। उसके बाद मुझे एरे बनाना था जीरोस का, सो आई क्रिएटेड जीरोस का एरे, सो ठीक है। देन उसके बाद मुझे बनाना था एरे, लेकिन ये बनाना था मुझे 2D, ठीक है, दिस इज 1D, ये वन डायमेंशनल है, राइट।
मुझे ये 2 डायमेंशनल बना था, यू कैन सी दिस इज 2 डायमेंशनल। सो आई एम सेइंग मुझे 5 रो चाहिए, सॉरी 5 छोटे लिस्ट चाहिए उसके अंदर, एंड हर एक के अंदर 4 एलिमेंट्स चाहिए। यहाँ पर मैंने कहा कि 5 मुझे कॉलम्स चाहिए, कैसी सॉरी रोज चाहिए, 1 2 3 4 5, हर एक के अंदर 9 जीरोस चाहिए। आई कैन से, और मैं मतलब कितना भी बड़ा मैं आई कैन क्रिएट। सो आई विल से एमपी डॉट अरे, और उसके अंदर आई विल से मुझे 4 रो चाहिए और हर एक के अंदर 10 जीरो चाहिए, हर एक के अंदर 10 जीरो चाहिए। एंड आई विल से डी टाइप इक्वल्स टू व्हाट, डी टाइप इक्वल्स टू स्ट्रिंग कर देता हूँ मैं इस बार, लेट्स से स्ट्रिंग आते हैं क्या। अरे लेट्स चेक, चेक इक्वल्स टू चेक, स्ट्रिंग नहीं आते गाइस, इंट। अच्छा, अरे नहीं मैं वही बोलूँ, ये क्या हो रहा है, जीरोस, जीरोस चाहिए जीरोस। तो इंट आ गया, और शायद लेट्स चेक इफ वी गेट स्ट्रिंग आल्सो। ओके, सो जीरोस को स्ट्रिंग में कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है, जीरोस को स्ट्रिंग में कुछ इस तरीके से दिखता है। So usually zero should not be a string. That's the example. Anyways, now going ahead with how to create a matrix of ones. ठीक है, ये कैसे रहेगा, ये भी सिंपल कुछ ऐसे ही रहेगा, array equals to np डॉट ones नाम से एक फंक्शन रहेगा, उसके अंदर आप डाल दो कि मुझे 5 ये चाहिए, 5 1 चाहिए, 5 1 चाहिए। अनदर एग्जांपल इज अरे, एक काम करता हूँ, इसको मैं आपको देता हूँ, ठीक है, तो माय आउटपुट शुड लुक लाइक दिस, 1 1 1 1 अरे 1 1 1 1 ठीक है, माय आउटपुट शुड लुक लाइक दिस, आउटपुट शुड लुक लाइक दिस। सेकेंड, माय आउटपुट शुड लुक लाइक दिस, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, आई विल क्रिएट अ लिस्ट, और इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, ऐसे कर देता हूँ, ये चाहिए कॉमा, ये चाहिए कॉमा, ये चाहिए, ठीक है। सो दीज आर माई 2 आउटपुट्स, मुझे ये 2 आउटपुट चाहिए। सो हाउ विल आई गेट इट, मुझे ये कैसे मिलेंगे, क्विकली, हाउ विल आई गेट इट, हाउ विल आई गेट इट। सो फर्स्ट आउटपुट ये चाहिए, ठीक है। सो यू हैव सम 1 minute to solve this, 1 minute to solve this, 2 minutes, I'll be back. डेटा टाइप कुछ भी ले लो, नो वरीज। सो आई विल शो यू दिस, जिससे आप कुछ कर सको। You will try it quick. ठीक है, zeros and ones will be exactly same, almost same. So 1 minute gone. Anyone tried this one? That's it. He tried both of them. Okay. So first was this. Okay. Second was this. तो मेरे को ये आउटपुट चाहिए था। Anyone else also trying the same? Just let me know. So first he says he need np dot array.
दिस इज रॉन्ग। सो यहाँ पर हमें वंस चाहिए, ठीक है। सो बिकॉज आई वांट दिस 111 5 टाइम्स, तो यू डोंट नीड टू मेंशन दिस 5 आउटसाइड, तो यू कैन से दिस, तो मुझे ये आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है। someone also tried once okay np dot once 5 integer, ठीक है, got it। so here you are right, ठीक है, here you are right। now here also, instead of what arrays, you must mention this। so this is 3 by 5 guys, ठीक है, दिस इज 3 कि मुझे 3 लिस्ट चाहिए। अभी मैं इसको रन करूंगा तो मुझे 5 लिस्ट मिलेगी, ठीक है, 5 लिस्ट मिलेगी हर एक के अंदर 1 1। तो व्हाट माई नीड इज, आई नीड 3 लिस्ट, 3 छोटी छोटी लिस्ट, एंड दिस शुड बी माई आउटपुट, ठीक है। दिस इज व्हाट माई आउटपुट एग्जैक्टली, ठीक है, तो इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। ये पूछे जाते हैं guys, ये दीज आर इंटरव्यू क्वेश्चंस, ठीक है, these are interview questions। so हम अभी देखते हैं कि हाउ टू, सो क्वेश्चन भी आएगा ऐसे, क्वेश्चन क्रिएट ए डेटा फ्रेम ऑफ वंस, एंड वो दे देंगे आपको फॉर एग्जांपल 10 बाय मैट्रिक्स क्रिएट करो बोलेंगे, ठीक है, 10 बाय 12 का मैट्रिक्स क्रिएट करो। सो ऐसा कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन आ सकता है, बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा है क्या लिख दिया भाई इंटरव्यूअर ने, ठीक है। बट यहाँ पर वंस दिख रहा है, 10 बाय 12 दिख रहा है, सो आई नो ये कैसे करना है, ठीक है, आई नो ये कैसे करना है। तो सबसे पहले मैं ये करता हूँ, लेट्स से मैंने एरे ले लिया और मैंने क्या np डॉट वंस, ठीक है, उसके अंदर मैंने पास कर दिया, क्या पास कर दिया, उन्होंने जैसे कहा मुझे 10 बाय 12 के क्या चाहिए, मैट्रिक्स चाहिए, और मैं डी टाइप क्या कर दूंगा, डी टाइप आई विल मेंशन एज आई, बिकॉज इंटीजर इट इज ऑलवेज गुड। तो अगर मैं इसको ऐसे ओपन कर दूं तो मुझे ये तो मैट्रिक्स मिल गया, ठीक है। आधा क्वेश्चन मैंने क्रॉस कर लिया, 50% मुझे मार्क्स मिल गए, मेरे हायरिंग के चांसेस बढ़ गए, ठीक है। नाउ इट सेज डेटा फ्रेम क्रिएट करो। डेटा फ्रेम तो मुझे याद है, हाउ डू आई क्रिएट, आई से import pandas as pd। सो ये समझ में नहीं आता है तो भी नो वरीज, ठीक है, लेकिन इसको समझ ही लेंगे बाद में, ओके, इसको समझ ही लेंगे हम बाद में। सो एनीवेज, so you will say data frame equals to df equals to pd ये pd, ये pd इधर pd ये वाला, ठीक है। what you have said, df equals to pd डॉट, आपको यहाँ पर जैसे ही डॉट करोगे, अरे आजा भाई, ये डेटा फ्रेम मिल जाएगा, ठीक है, दिस फंक्शन। उसके अंदर आपको क्या पास करना है, ये एरे पास करना है सबसे पहले। इफ आई पास दिस एरे सिंपली, मैंने कुछ भी नहीं किया, बस एरे पास कर दिया, एंड आई एम आस्किंग फॉर दिस डेटा फ्रेम, तो मुझे एक डेटा फ्रेम ही मिल गई। सो दिस विल गिव यू व्हाट, 80% मार्क्स, 80% मार्क्स। तो इंटरव्यूअर बोलेगा शाबाश बेटे, ठीक है, बट वो ही विल स्टिल थिंक कि अरे, और ये बंदा यहाँ पर एक कॉलम डाल सकता था। so if you simply type this you will get this, and you just have to mention and create a list। उसके अंदर आपको टाइप करना है a, let's say a b c d e f g h i j k। तो मैंने 10 नहीं, 12 कॉलम लिए, ठीक है, 12। if I run this, अरे I will get an error। तो आई जे के एल चाहिए, शायद ये 12 नहीं होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अब है सही, ठीक है। सो स्टिल आई एम गेटिंग एन एरर, एरर क्यों आ रहा है भाई। सो दिस इज कंसिडरिंग अ सिंगल एलिमेंट वाइट। सो मैं इसको निकाल देता हूँ, यहाँ पर आई विल से लिस्ट ऑफ इसको, और मैं कुछ इस तरीके से। तो नाउ इफ आई सी, ये मुझे 1 2 3 ऐसे मिल जाएगा, ठीक है। तो अब मैं इसको यहाँ पर पास कर देता हूँ, ठीक है। सो नाउ इट शुड वर्क। पहले क्यों नहीं हो रहा था, पहले क्यों नहीं हो रहा था, पहले आई वाज टेकिंग लाइक दिस, ये, और इसके अंदर ये था, इसके अंदर ये था। इफ आई रन दिस आई शुड गेट दिस,
तो ये एक ही एलिमेंट आ रहा था। नाउ व्हेन आई सेड लिस्ट ऑफ ए बी सी डी टिल के एल, तो ये 12 एलिमेंट आ रहे हैं। नाउ ये सारे कॉलम्स में ऐड हो गए, ठीक है। एवरीथिंग गॉट एडेड इनटू व्हाट, कॉलम, ठीक है। सिंपल है। अगर ये नहीं आता है तो भी फाइन, यहाँ तक भी समझ में आ गया तो भी बहुत सही। अगर ये भी नहीं समझ में आ गया तो जब हम पांडास पढ़ेंगे 2-4 दिनों बाद, तो ये एनीवे समझ में आएगा। बट इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस वन, वेरी गुड, ठीक है। इफ यू अंडरस्टूड दिस वन, वेरी गुड। सो क्विकली अभी थोड़ा सा क्विक क्विक ले लेते हैं। इफ यू हैव अंडरस्टूड दैट वन, टाइप यस गाइस। इफ यू हैव अंडरस्टूड, टाइप यस। तो मुझे आइडिया आएगा आगे जाने नहीं जाने, ठीक है। सो नेक्स्ट हम देखेंगे हाउ टू क्रिएट a सीक्वेंस। सीक्वेंस का स्पेलिंग देखें, सीक्वेंस ऑफ numbers using a range function, ठीक है। हम ये देखेंगे अभी। Have you got this clear? Yes, 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 दो ही यस आ रहे, बाकी लोग सो रहे। तो सबसे पहले हमने एक रेंज फंक्शन देखा था इन द लिस्ट। वी सॉ दिस रेंज फंक्शन, कि मैंने ये रेंज फंक्शन बोला और मुझे 10 के बीच के अंदर एक रेंज दे दो, तो आई यूज टू गेट दिस लिस्ट। 1 to 20 के बीच में मुझे रेंज फंक्शन यूज करता हूँ। So similar function we have in the NumPy, that is, let's say range array equals to np dot arrange function। क्या फंक्शन का नाम है? रेंज नहीं, अरेंज। इसके सामने क्या डाल दिया इन्होंने? ए डाल दिया। रेंज के आगे ए डाल दिया, अरेंज कर दिया और इसको यहाँ पर यूज कर लिया। सो यू कैन सिमिलरली से मुझे 1 to 20 दे दो, ठीक है, और रेंज एरर बोल दो, और व्हाट यू विल गेट सिमिलर थिंग। व्हाट द सिमिलर थिंग? ओके, ये सेम है, राइट। ये लिस्ट आ रहा था पहले, नाउ आई एम गेटिंग अ एरे, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है इंटरव्यू में कि भाई मुझे यूजिंग अ रेंज फंक्शन और क्रिएट अ एरे ऑफ एरे यूजिंग रेंज फंक्शन, ऐसे बोल देंगे, वो कंफ्यूज कर देंगे। so you must know there is no range function, there is a range function is there, ठीक है। a range function is there। तो ये हमें और एक याद है, इसके अंदर स्टेप साइज भी चलती थी, लाइक दिस। इफ यू सी दिस इज स्टेप साइज। स्टेप साइज में हम क्या कंसिडर करते हैं? मिस्टर मारियो, मिस्टर मारियो मिस्टर मारियो क्या करेगा? जंप करेगा फ्रॉम one number to another number to another number, so meaning 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 and so on, ठीक है। यहाँ पर 3 डाल दूंगा मैं तो 3 नंबर्स पे करेगा, 1, 4, 7, लाइक दिस, ओके। तो ये सेम फंक्शन यहाँ पर भी वर्क करता है, सेम फंक्शन यहाँ पर भी वर्क करता है। यहाँ पर मैं अगर 2 डाल दूँ तो आई विल गेट सिमिलर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। और यहाँ पर नेगेटिव, इसको मतलब अगर इसको मैं -2 कर दूं तो शायद मुझे उल्टा लिस्ट मिल जाए। अच्छा, नहीं आ रहा इसको मुझे शायद 20 करना होगा। 22 गिव मी 0 and this 22 0। नाउ दिस विल बी अ उल्टा लिस्ट, ठीक है। सो ये नेगेटिव स्टेप साइज भी यहाँ पर वर्क करता है, ठीक है। So I will add negative step size. This is a positive step size, ठीक है, like this, ठीक है। एंड दिस इज वन ऑफ द फंक्शन। इसके अंदर कोई भी डाउट्स है, कोई भी शंका, तो टाइप शंका। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, इफ यू डोंट हैव एनी क्वेश्चन, लेट्स गो अहेड। कुछ भी क्वेश्चन है तो लेट्स टॉक गाइस, कि ये मुझे नहीं समझ में आया, ये थोड़ा ऊपर से चले गया, कि कैसे कर लिया भाई, ये तो नहीं समझ में आया क्या है ना। लेट्स टॉक अबाउट इट, ठीक है। समवन सेंड सुदीप,
कोई से कॉमा, हेलो हेलो भाई, कैसे हो भाई? ठीक हो भाई, आप कैसे हो? हाउ आर यू मिस्टर सुदीप? ओके। सो किसी को शंका है क्या? नो शंका। अच्छा, मुझे ही है अकेले क्या? कुछ भी डाउट? ठीक है, ये इजी 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 चीज है। अभी ये हम फंक्शन देख रहे हैं नंपाई में, ठीक है। हम कल भी कुछ फंक्शन ही देखे थे, जैसे रीशेप हो गया, टू लिस्ट हो गया, ठीक है। हर एक का कुछ तो है। सबसे पहले हमने क्या देखा कि कैसे एम्प्टी एरे क्रिएट करें, इसका कोई फंक्शन है नहीं। फिर बाद में देखा हमने जीरो, फिर उसके बाद में देखा हमने वंस, ठीक है। और अभी हम देख रहे हैं व्हाट, रेंज, अरेंज, नॉट रेंज, अरेंज। सिमिलरली लाइन स्पेस भी है। लाइन स्पेस में आपको बता देता हूँ, एक डमी एरे अगर आपको क्रिएट करना है लाइफ में, इफ यू वांट टू क्रिएट डमी एरे, यू विल से np डॉट lin space, दिस वन, ठीक है। यू विल से np डॉट lin space, यू विल से कि मुझे, so Sudeep says, is there comprehension in NumPy as a list? Comprehension. I have personally not tried it. I think there may be, maybe I have to look into it. Okay. Coming back to lin space. ठीक है, so lin space है कि आपको क्या करना होगा। यहाँ पर भी आप पढ़ सकते कि थोड़ा सा डीप कर डाइव करके देखना होगा कि यू हैव टू स्टार्ट सम, देना होगा स्टार्ट स्टॉप इंटरवल एंड सो ऑन, ठीक है। सो लोकेश, आई गॉट क्लास लिस्ट व्हेन आई आस्क फॉर रेंज, क्लास लिस्ट। हाँ हाँ, तो यू हैव टू से दिस लिस्ट ऑफ रेंज दिस, ठीक है। अगर मैं ये सिंपली इसको इसको कॉल करूँ तो आई विल गेट अ क्लास। अच्छा, क्लास तो आई मतलब ये करके दिखाए क्या, लिस्ट, लिस्ट ऑफ रेंज ऑफ, ट्राई दिस एग्जैक्टली, ट्राई दिस एग्जैक्टली। np डॉट लीन स्पेस, सो आई विल हैव टू से कि मुझे जीरो से स्टार्ट कर दो टिल 20, ठीक है। मैंने क्या स्टार्ट नंबर दे दिया, स्टॉप नंबर दे दिया कि जीरो से स्टार्ट कर दो 20 तक। तो लेट मी चेक क्या आता है आउटपुट। सो आई गेट दिस एज अ आउटपुट, ठीक है। आई गेट दिस एज आउटपुट। यू कैन ऑल्सो स्पेस लाइक nums या num इक्वल टू, लेट से आपने 21 दे दिया, ठीक है। सो व्हाट यू विल गेट, ऑल 20 नंबर्स, लाइक जीरो से 0 1 2 3 20, ठीक है। सो वो पहले तो रैंडमली दे देगा, ठीक है। इसके अंदर आप और क्या टाइप कर सकते हो, डी टाइप इक्वल्स टू इंट, इंट डाल दिया, ठीक है। इंट डाल दिया, अभी ये फ्लोट है सारी, ठीक है। डी टाइप इक्वल्स टू फ्लोट, so you can add like this. So now you can see these all are integers, and this also gives. hmm, Mr. Lokesh has some issue कि उन्होंने ये सेम ट्राई किया। आप ये जो आपका इनपुट डाल रहे हो वो एक बार कमेंट में ऐड कर देना, ठीक है। वॉट एवर द इनपुट दैट यू आर ट्राइंग, प्लीज एक बार कमेंट में डाल देना एग्जैक्टली। यहाँ पर कुछ तो यू मे हैव यू, मैं तो चाहिए स्टिल, I should still get this if I add it. Are you guys getting this one? Are you guys getting this one? क्या क्या कह दिया मैंने यहाँ पर, मुझे चाहिए 0 से 20 नंबर तक एलिमेंट्स, उसके अंदर इनको 21 कर दो, क्योंकि if I don't say 21, let me keep that example also here. If I don't say these things, okay, so how the output I get कि बहुत ही ज्यादा नंबर आ जाएंगे, लेकिन all the numbers are in between what, 0 to 20, ठीक है। सो लिन स्पेस क्या देता है, या lin स्पेस क्या देता है, इट गिव्स यू क्रिएटिंग अ लीनियर स्पेस्ड वैल्यू, creating creates a linear space values, ठीक है। इट क्रिएट्स अ लीनियर स्पेस वैल्यू, कि ये कुछ पहले तो अभी तो ये रैंडमली जनरेट कर रहा है, ठीक है। मतलब 4 के डिस्टेंस पे लेगा, 0 0 4 0 8 0 12 16 एंड सो,
Now when you specifically mention that uh, कि आपको num equals to 21 चाहिए because these are somewhat 21 numbers अगर हम integer calculate करें तो कुछ इस तरीके से आ जाए. Let me give you one more example. Again लोकेश का एक example question है. Lim range 120 exactly तो same है भाई. How do I tell you now? ऑब्जेक्ट तो नहीं आना चाहिए. लोकेश चंद्रा. Lokesh Chandra, let's connect after this call class. So I have mentioned the group link in the description also और जो post है हमारा YouTube का पर YouTube. So there is a group link. Okay, there is a group link. यहाँ पर चले जाना और यहाँ पर this one. So let's connect on the यहाँ पर ये. तो आपको ग्रुप में मिल जाएगा. Just drop a message. हम connect करते हैं उसके बाद. ठीक है. Okay, let me give you one more example. Dumb array. Dumb यानी dumb नहीं है वो. Dumb यानी dummy. ठीक है. And I'm again using linspace. इस बार मुझे guys elements चाहिए 0 to 23 और वो भी चाहिए कुछ 12 ही चाहिए मुझे. If I say like this, dumb array. So what I will get? I will get 0 to 23 elements और वो भी 12. So it will itself figure out कि इसको कैसे डिवाइड करना है. ठीक है. जितने भी नंबर्स हैं उनको कैसे डिवाइड करना है. इट विल इटसेल्फ फिगर आउट. ठीक है. और एक एग्जांपल देता हूँ. डम array d array equals to np dot linspace. ठीक है. इस बार आई एम सेइंग कि मुझे 0 1 to 21 दे दो और कितने दे दो 11 नंबर्स दे दो कुछ भी. लाइक आई एम जस्ट सेइंग क्योंकि इट इज इटसेल्फ इट विल फिगर आउट कि 0 लाइक 1 to 21 देना है और ऑल द नंबर शुड बी व्हाट 11. ठीक है. सो वो सारे फ्लोट है तो कुछ सारे इंटीजर्स है कुछ इस तरीके से आ जाएंगे. फ्लोट है तो कुछ अलग तरीके से आ जाएंगे. ठीक है. सो लाइक दिस. Okay, like this. Anyone has any doubts here? Anyone has any doubts here? Any slightest doubt? कि मुझे क्या मैं क्या कर रहा हूँ. आई एम जस्ट क्रिएटिंग अ रैंडम नंबर लिस्ट. देखो रैंडम नंबर जनरेशन. ठीक है. रैंडम नंबर जनरेशन में हम क्या कर रहे हैं. आई एम जस्ट सेइंग रैंडम भी नहीं है. आप एक रेंज दे रहे हो. यू आर सेइंग कि स्टार्ट करो 1 से एंड करो 21 तक और उनके बीच में वो सारे नंबर्स 11 रहने चाहिए. ठीक है. If I say d y equals to one more example and d dot min space आ गया and I'm saying मुझे 100 से लेकर 1000 तक नंबर चाहिए और वो भी 10 ही चाहिए. ठीक है. What you have saying 100 से लेकर 1000 तक नंबर चाहिए और वो भी 10 ही चाहिए. तो you'll get 100 and till 1000. Okay, 1000. So this is when you can use this. जब आपको कोई भी let me give you one example in terms of creating and what a data frame. ठीक है. Data frame. सुदीप says कि लिंक स्पेस का लास्ट का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा. So this one again going ahead. ठीक है. यहाँ पर देता हूँ. So this is a start number. ठीक है. Start num comma end num comma number numbers of elements. कुछ इस तरीके से इसका फॉर्मेट है. ठीक है. कुछ इस तरीके से. So this is a starting number. This is a starting number. This is a starting number. This is a ending number. This is a ending number. This is a ending number. And at the end you say कि इसके अंदर 10 elements चाहिए मुझे. So it will automatically create इसके बीच के अंदर 10 elements including these numbers. If I add 100 numbers.
So what it will do, it will create 100 numbers. Okay, it will by itself, it will decide कि इसको कैसे डिवाइड करना है. ठीक है, नॉट लुकिंग गुड, तो मैं इसको ऐसे कर देता हूँ. मुझे 10 चाहिए, अगर आप 5 कह दो तो कुछ इस तरीके से दे देगा. ठीक है, अगर आप इसको 7 कह दो तो कुछ इस तरीके से दे देगा. 100 250 400 एंड सो. ठीक है, तो अगेन मेकिंग बैक टू 10, क्योंकि ये थोड़ा, ये कुछ तो लग रहा है 100 का पारा लग रहा है. ठीक है, सो लाइक दिस 100 का टेबल. So I hope this one is clear. So let me just give you one more example in terms of uh, data frame. So you will get to know. Thank you, sir. Okay, welcome. So in terms of creating a data frame using a linspace. Okay, using a linspace. So I've taken a data frame or a dictionary. उसमें मैंने एक की वैल्यू लिया, लेट्स से अमाउंट. ठीक है, व्हाट आई हैव टेकन अमाउंट, और उस पर मैंने कह दिया लिन np डॉट लिन स्पेस. और अमाउंट के अंदर मैंने डाल दिया यही एग्जांपल लेते हैं, मुझे 100 से 1000 तक चाहिए, और कितने एलिमेंट्स चाहिए मुझे, 10 एलिमेंट्स चाहिए, या फिर थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा लंबा. चलो मैं 100 से 600 तक दे दो, कितने एलिमेंट दे दो, 6 एलिमेंट दे दो. और सबका मैं डी टाइप जो है, डी टाइप में इंटीजर ले लेगा. ठीक है, इंटीजर ले लो, ये ऐसे स्पेसिफाई किया तो भी चलता है. ठीक है, नाउ another element I am taking, let's say interest. ठीक है, इंटरेस्ट मैंने ले लिया. इंटरेस्ट में आई एम ऑल्सो सेइंग np डॉट लिन स्पेस. उसके अंदर आई एम सेइंग कि कुछ 12.5% से लेकर मुझे 3.5% तक का इंटरेस्ट चाहिए, और वो भी फॉर एग्जांपल मुझे 6 इसके अंदर टाइप्स चाहिए. ठीक है, 6 टाइप्स चाहिए. नाउ आई एम सेइंग मुझे जो महीना है आपका जो लोन का, ठीक है, लोन का जो महीना है, आई एम सेइंग np डॉट लिन स्पेस. लिन स्पेस, वो कुछ 6 मंथ से 36 मंथ का लोन चाहिए. ठीक है, 6 मंथ से 36 मंथ का लोन चाहिए, और कुछ 6 इंटरवल्स में चाहिए. ठीक है, 6 इंटरवल्स में चाहिए. एंड द डी टाइप हियर इज इट शुड बी अगेन इंट. ठीक है, कुछ इस तरीके से मैंने एक डिक्शनरी तैयार कर ली. So now if I run and ask this just one, so it should look like this कि मंथ इतने हैं, अमाउंट इतनी है, 100 से लेकर 600 रुपए तक लिया आपने. इंटरेस्ट आपको इतना लग सकता है, 12 से लेकर 3.5 तक, ज़्यादा से ज़्यादा 12.5 लगेगा, और ये लगेगा, ये लगेगा, ये लगेगा. और कितने मंथ के लिए, अगर 6 महीने के लिए लेते हो तो 12.5 लगेगा, 36 महीने लेते हो तो 3.5 लगेगा. ठीक है, नाउ यू कैन ऑल्सो कन्वर्ट दिस वन इनटू व्हाट, अ डेटा फ्रेम. इसको कैसे डेटा फ्रेम में करोगे, सो विल से df इक्वल्स टू pd डॉट, यहाँ पर मुझे आ जाना चाहिए डेटा फ्रेम, डेटा फ्रेम, डेटा फ्रेम, और इसके अंदर मैंने ये डिक्शनरी 1 डाल दी. ठीक है, डिक्शनरी 1 डाल दी. एंड इफ आई जस्ट सिंपली आस्क दिस, so I should get this nice table, amount, interest, month. बढ़िया है, मजा आ रहा है कि भाई मुझे अमाउंट कुछ इस तरीके से दिख रहा है, इंटरेस्ट ये है मेरा, और मंथ ये है. सो दीज काइंड ऑफ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर्स आप आपके डेटा फ्रेम में जनरेट क्रिएट कर सकते हो. डेटा फ्रेम पांडास पढ़ने में बहुत मजा आएगा गाइस आपको. ठीक है, यू विल लर्न पांडास, लाइक यू विल लव पांडास. सो लेकिन उसके लिए नमपाई पढ़ना भी जरूरी है. ठीक है, मोस्टली लाइक बहुत ज्यादा यूज नहीं करते नमपाई हम उसमें, बट ये कुछ छोटे मोटे फीचर्स हैं. लेट्स क्विकली रिवाइज एंड क्लोज द टुडेस कॉल. सबसे पहले हम देख रहे थे कि रैंडम नंबर जनरेशन. ठीक है, कल हम रैंडम नंबर और थोड़ा ज़्यादा देखेंगे उसके अंदर, लाइक स्पेसिफिकली हम रैंडम नंबर देखेंगे. ठीक है, स्पेसिफिकली जिसके अंदर हम एक्चुअली वी विल इंपोर्ट रैंडम. रैंडम, ठीक है, तो इसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं. ठीक है, कौन से होते हैं, रैंडम डॉट रैंडम. ठीक है, ये सारे सीखेंगे. रैंडम डॉट रैंडम, रैंडम, रैंड इंट, रैंड बाइट तो नहीं होता है, बट ठीक है. सो 3-4 और हैं. ठीक है, सो वी विल लर्न दिस, कुछ यही से शुरू करेंगे मे बी. एनीवेज लेट्स क्विकली रिवाइज. सबसे पहले हमने क्या किया, वी ट्राइड एंड क्रिएटेड एन एम्प्टी लिस्ट.
हमें सबसे पहले क्रिएट करनी थी एम्प्टी लिस्ट. हाउ टू क्रिएट एन अरे विथ सॉरी हाउ टू क्रिएट एन एम्प्टी लिस्ट. So what you have to say, empty list equals to np dot array and empty list. So it will give you empty list, right? And you can also like initially it will give you a float. अगर आप int specify करते तो integer 64 मिलेगा. अगर यहाँ पर आप capital I कर तो integer 32 मिलेगा. ठीक है. So let me just keep this example. उसके बाद हमने देखा हाउ टू क्रिएट एन अरे ऑफ मैट्रिसेस विथ जीरोस. जीरोस कैसे क्रिएट करेंगे. सो व्हाट यू हैव सेड अरे इक्वल्स टू np डॉट जीरोस. ठीक है. अरे इक्वल्स टू np डॉट जीरोस. सो जीरोस में जितने भी जीरो चाहिए, मुझे 9 चाहिए तो 9 मिल गया. ठीक है. अगर मैं यहाँ पर 7 कह दूँ, क्योंकि 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 ओके, अगर मैं 7 कह दूँ तो मुझे 7 जीरोस मिल जाएगा. Now, if I say 5, तो मुझे 5 मिल गया. But my data type will be integer. जो मैंने I as a integer सेट किया. यहाँ पर कुछ सेट नहीं किया था, इसलिए मुझे float मिल गया. यहाँ ठीक है. I've set nothing, इसलिए float मिल गया. Then I can also create two dimensional array. ये one dimensional चल रहा था अब तक. ठीक है. This was 1D. Now 2D. हम थोड़ा evolve कर रहे हैं, आगे जाके 3D भी कर सकते हैं. ठीक है. So I said मुझे 5 columns चाहिए, 5 लिस्ट चाहिए, उस हर एक के अंदर 4 चाहिए, 4 जीरोस चाहिए. तो मुझे मिल गया. सिमिलर चीज हमने देखी, ये एक है जो हमने सीखा. तो आप देख लेना रिकॉर्डिंग में फिर से. तो दिस इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग. ठीक है. देन वी ऑल्सो सिमिलरली सॉ फॉर वंस. np डॉट वंस, यहाँ पर जीरोस की जगह वंस कर दिया. मुझे 5 वंस चाहिए थे तो मिल गया. अगेन मुझे अगर 7 वंस चाहिए तो यू नो द रीजन गाइस. तो दैट इज इट. और उसके बाद मैंने डेटा टाइप चेंज कर दिया इंटीजर में. इसको ऐसे कर दो या फिर ऐसे कर दो, इट्स द सेम. ठीक है. उसको लिस्ट में लिखो, स्ट्रिंग में लिखो और ना लिखो, इट्स द सेम. नाउ दिस वाज द क्वेश्चन टू यू एंड आल्सो दिस वाज आल्सो अ क्वेश्चन टू यू कि मुझे 5 1 1 चाहिए. इट वर्क्स द सेम. इसको सुदीप, अगर ऐसे लिखो तभी भी वर्क करेगा और वैसे ना लिखो तभी भी वर्क करेगा. ठीक है. इट अंडरस्टैंड डी टाइप जो फंक्शन है, इट अंडरस्टैंड. सो अगर आप ये डी टाइप को ओपन करते हो, जो शायद नहीं होगा, होगा या नहीं होगा. हाँ. सो दिस नहीं हो रहा. सो दिस डी टाइप टेक्स, अच्छा अभी कुछ नहीं दे रहा. ठीक है. बट बेसिकली दिस टेक्स, हाँ यहाँ पर आया था एक्चुअली. ये कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स लेता है. यहाँ पर आप देखोगे, अरे यार ये कीवर्ड आर्ग्यूमेंट लेता है, की आर्ग्स एंड कीवर्ड्स. सो ये इंटीजर भी लेता है, स्ट्रिंग भी लेता है. ठीक है. इंटीजर भी लेता है, स्ट्रिंग भी लेता है. सो दिस बोथ वर्क. ओके. सो दिस टेक्स इंटीजर आल्सो, स्ट्रिंग आल्सो. गोइंग अहेड, आई वांटेड टू क्रिएट दिस मैट्रिक्स. ये मुझे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ गया. क्रिएट अ डेटा फ्रेम ऑफ वंस मैट्रिक्स 10 बाय 12. तो सबसे पहले मुझे ये पता था कि np डॉट वंस अगर मैं ऐसे कर लेता हूँ 10 by 12, तो मुझे ये मिल जाएगा. एंड देन उसके बाद आई फिगर्ड आउट हाउ टू चेंज इनटू अ डेटा फ्रेम. सो मैंने सिंपली पांडास को इंपोर्ट कर लिया. आई सेड df इक्वल्स टू pandas डॉट डेटा फ्रेम. उसके अंदर ये एरे मैंने डाल दिया एंड आई गॉट दिस नाइस स्ट्रक्चर. और उसको मैंने कॉलम भी दे दिया, कॉलम नेम भी दे दिया. कैसे दे दिया, कुछ इस तरीके से, लिस्ट ऑफ abcd till l. ठीक है. till l. And I've got this as a nice output. Okay. Then how to create a sequence. तो उसमें हमने रेंज यूज करा था. रेंज कुछ इस तरीके से है. लोकेश को इसका और भी प्रॉब्लम, इसका अभी भी प्रॉब्लम है. सो वी विल सॉल्व दिस लोकेश फॉर यू पर्सनली. एंड देन सेम फंक्शन जो रेंज हम फंक्शन सीखा था लिस्ट में, सो ये सेम फंक्शन हम numpy में भी सीख रहे हैं, दैट इज अरेंज. एग्जैक्टली सेम. इसमें स्टेप साइज भी है, नेगेटिव स्टेप साइज भी है, एवरीथिंग. एंड लिन स्पेस जो हमने अभी एकदम लेटेस्ट में सीखा. ठीक है. so this was all about it today. लोकेश, we have this github. ठीक है. github repo. सो आपको ये मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में इफ यू ज्वाइन द ग्रुप.
ग्रुप ज्वाइन करने के लिए गाइस डिस्क्रिप्शन में लिंक है या फिर पोस्ट में है, यहाँ पर पोस्ट में ज्वाइन कर लो। एंड इस गिटहब पे ऑल द नोट्स आर देयर। ठीक है, किसी को उप्स कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता तो उप्स कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। ऑल द नोट्स आर हियर एंड हियर आल्सो, लाइक मैंने अच्छे से हर एक एग्जांपल देकर सिखाया है। ओके, एंड वीडियोस आर आल्सो देयर ऑन द यूट्यूब, यू विल गेट द प्लेलिस्ट मिल जाएगी कहीं पे, यहाँ पर उप्स की। यहाँ पर ये सारे वीडियोज है। सिमिलरली नमपाई की भी हम क्रिएट करेंगे एंड यू विल गेट ऑल द वीडियोज। तो सब्सक्राइब कर दो एंड ज्वाइन द ग्रुप एंड दोज हु हैव अंडरस्टूड दिस। अच्छा, ये समझ में आया है क्या? इतने गप्पे मार दिए गाइस ने। हैव यू गॉट दिस? हैव यू गॉट दिस? हैव यू गॉट दिस? यस और नो? जिसको नहीं समझ में आया है, हैव यू गॉट दिस? नो? स्लाइटेस्ट क्वेश्चन गाइस, स्लाइटेस्ट क्वेश्चन। यू हैव 1 मिनट्स। आज थोड़ा ज़्यादा क्लास लंबा चला है बट बेयर विथ मी, क्योंकि हमें जल्दी जल्दी NumPy एंड ऑल द सब्जेक्ट्स क्लियर करने हैं, क्योंकि नेक्स्ट हमारा रहेगा पांडास और उसके बाद रहेगा मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, NLP, और फिर हम जनरेटिव AI पे स्विच करेंगे। हर एक टॉपिक पे आपको असाइनमेंट्स दी जा रही है। असाइनमेंट्स यू कैन फाइंड अगेन इन द ऑन द गिटहब। यहाँ पर असाइनमेंट टाइप्स में कंप्लीट दीज असाइनमेंट। एक दो असाइनमेंट्स, दो असाइनमेंट 1 है, 5 4 है, 2 एंड 3 मिसिंग है, मैं इसको डाल दूंगा इसके अंदर। ठीक है, तो कंप्लीट दीज असाइनमेंट्स, आपको प्रोजेक्ट्स भी देंगे। रिजल्ट ऑफ डमी एरे नहीं समझ में आया है। ओके, एनीवन एल्स हैज अ क्वेश्चन गाइस? लेट्स हेयर इट अप। दिस वन। अच्छा, ये थोड़ा सा फास्ट हो गया था शायद मेरे से, तो डमी अरे तो है नहीं, डमी ARY है दिस वन। सो लेट्स चेक इट आउट। तो लिन स्पेस क्या करता है? सबसे पहले इट गिव्स यू, इस आस्क यू स्टार्टिंग नंबर एंड एंडिंग नंबर। सो उसके अंदर ये रैंडमली कुछ भी दे देगा। ठीक है, बट आप उसको ऑल्सो कह सकते कि स्टार्टिंग नंबर ये है, एंडिंग नंबर ये है, और उसके अंदर मुझे 21 नंबर्स ही चाहिए पूरे मिला के। अगर इनको काउंट करो ना आप, 0 लाइक 1 2 3 एंड 21, तो ये काउंट कर लेना, 21 हो जाएगा। लाइक ये 20 पकड़ लो, 20। ओके ओके, सो दैट इज इट। एंड आप यहाँ पर डेटा टाइप भी मेंशन कर सकते हो। ये इंट मैंने मेंशन किया था, इफ आई डोंट मेंशन इंट मुझे सारे फ्लोट मिल जाएंगे। ठीक है, so that's why I mention int here. Okay, that's why I mention int here, क्योंकि मुझे सारे इंटीजर्स चाहिए थे, सारे इंटीजर्स चाहिए थे। सो सिमिलरली यहाँ पर मैंने कहा कि 0 से स्टार्ट करो 23 तक और सारे 12 नंबर। ये नम्स लिखो या नहीं लिखो, डजेंट मैटर। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट इज। some more question from Lokesh, is it available on Zoom classroom commencement time? तो हमारा क्लास शुरू हो रहा है। So this is our morning batch. So we have also started this what इवनिंग बैच हम स्टार्ट करें, वो 0 से पाइथन हम सिखाएंगे। ऑल द लेक्चर्स दैट वी हैव डन, यहाँ पर जितना भी सिखाया है वो सारा फिर से सिखाएंगे कब। तो ये ज्वाइन कर लो ग्रुप फटाफट एंड सी यू इन द अदर क्लास। ये क्लास आप ज्वाइन कर सकते हो न्यू वाली बैच में, 0 से सिखाएंगे। अभी मॉर्निंग का टाइम जो है मॉर्निंग बैच का, दैट इज उसके ऊपर का। ओके, मॉर्निंग का टाइम है 8 से 9। तो मॉर्निंग 8 से 9, आज थोड़ा 9:30 तक एक्सीड हो गया। ओके, उसके ऊपर का, इसके ऊपर का दिस वन ये तो सिंपल है भाई। या ये लाइक ये भी बता देता हूँ, दिस इज अरेंज फंक्शन। 20 से 0 तक मुझे नंबर दे दो, 20 से 0 तक नंबर मिल जाएंगे। स्टेप साइज -2 थी। लाइक इसके अंदर ज्यादा कुछ नहीं है, लाइक यहाँ पर भी मैंने लिखा है। लिन स्पेस क्या है? इट्स स्टार्टिंग नंबर है, एंडिंग नंबर है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। ये स्टार्टिंग नंबर है 100, एंडिंग नंबर है 1000, और उसके अंदर जितने भी, अगर 10 मेंशन करोगे तो ये 10 में आएगी, अगर 5 मेंशन करोगे तो ये 5 में आएगा, ऐसा।
ठीक है like this। इसके अलावा इसके अंदर कुछ नहीं है। इसके ऊपर का सारा ही सिखा दिया भाई। 0 से 20, 0 to 20, 0 to 20 है, लेकिन मुझे 21 नंबर ही चाहिए। तो 21 नंबर एंड इंटीजर ही चाहिए। आई होप दिस इज क्लियर ऑल्सो। 8 9, अच्छा, आई होप दिस इज क्लियर। और बिन स्पेस, चलो ठीक है, इसको कल फिर से ले लूंगा मैं। ठीक है, आई विल टेक इट टुमारो एज वेल। ओके, क्लियर है, क्लियर है, सही है, सही है, क्लियर क्लियर क्लियर। Okay, if there is no questions, guys, if there are no questions, type win in the comments. Type win in the comments. Type win in the comments. Win in the comments. Type win in the comments. Because we start day with a win. कि हमें सारा समझ में आ गया, win, बढ़िया बढ़िया, सही है। Type win in the comments. And if you have questions, तो ग्रुप में भी डाल सकते हो आप। We are in the group. And if you कमेंट्स में भी डाल सकते हो। and if you got this, ऑलराइट, देन दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं कल के लेक्चर में। बाय बाय, सी यू टुमारो इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट बैच जो इवनिंग की है वो शुरू होगी जल्दी। आई विल लेट यू नो, मे बी ऑन द सैटरडे और मंडे। ठीक है, इवनिंग क्लासेस टाइमिंग अभी फिक्स होना बाकी है, बट टेंटेटिव टाइम रहेगा 7 से 9, 7 से 8, या 8 से 9, या 9 से 10। ठीक है, इज ईडीए इम्पोर्टेंट फॉर मशीन लर्निंग? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। सो स्टूडेंट, क्लास के स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सम क्वेश्चंस, सुदीप सेज, क्या और कैन आई जंप ऑन द मशीन लर्निंग विदाउट इट? नहीं सुदीप, टू यू हैव टू लर्न ईडीए। ईडीए अगर नहीं करोगे तो देयर विल बी सम इशू। एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस हमें आना चाहिए। सो उसके लिए हम जो सीख ही तो रहे हैं ये वाली चीज़, numpy एंड रेगुलर एक्सप्रेशन कह लो या पांडास कह लो, तो ये सारी चीज़ें हाँ इम्पॉर्टेंट है ईडीए सीखने के लिए। तो गो थ्रू द प्रीवियस लेक्चर्स ऑल्सो। ठीक है, ये लेक्चर्स में हुप्स का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, है ना। पांडास का लाइव भी आएगा। अभी मैं ये 3 दिनों से, अब ये लेक्चर छोड़ देना, 46 47 और ये 48 रहेगा। तो ये 3 लेक्चर नमपाई पे हम कवर कर रहे हैं, और 3 लेक्चर जाएंगे मैक्सिमम। तो यू विल बी वेरी गुड एट ईडीए आगे जाके, तो पता चलेगा। लोकेश, इवनिंग का बैच का टाइम अभी फिक्स नहीं किया है, मोस्टली 8 से 9 रहेगा, पकड़ लो। 8 से 9 पकड़ लो, ठीक है। आई विल अपडेट, ज्वाइन कर लो, ग्रुप ज्वाइन कर लो, रिक्वेस्ट डाल दो, मैं अप्रूव कर दूंगा। हाँ, अभी तो नहीं आया कुछ करने, ठीक है, रिक्वेस्ट डाल दो, आई विल अप्रूव इट। सो ये एक्चुअली पेड ग्रुप है, बट आई एम अलाउिंग सम स्टूडेंट एज ऑफ नाउ। कम्युनिटी ज्वाइन करो, काफ़ी चीज़ें मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, यू आर वेलकम गाइस। तो मिलते हैं इन द नेक्स्ट लेक्चर, आई होप। विन टाइप कर देना, विन, वी यूजुअली टाइप इन एट द एंड ऑफ द लेक्चर, सो दैट हमें पता चलता है कि सबको सब समझ गया है। एंड एंड इट इज़ गुड टू क्लोज द कॉल। ठीक है, इट इज़ गुड टू क्लोज द कॉल। ठीक है, so any win, लोकेश, सुदीप और समवन एल्स? कुछ लोग देख रहे हैं साथ, बातें भी करो गाइस। हाँ, talk in, if you have any doubt related to career also you can type, we can discuss, okay, career related कर लो and all। so हम क्लासेस शुरू कर रहे हैं, उसमें जॉब की गारंटी भी दे रहे हैं कि आपको जॉब तो दिला के ही रहेंगे। ठीक है, वी आर कवरिंग एवरीथिंग, राइट फ्रॉम पाइथन वेरी बेसिक्स टू मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, और डेटाबेस भी सिखाएंगे, एसक्यूएल भी सिखाएंगे। इसके बाद आपको जनरेटिव एआई भी सिखाएंगे, हर एक के ऊपर हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट्स भी देंगे। एंड आपके मॉक इंटरव्यू भी लेंगे, रेज्यूमे बना के दे देंगे। वी विल ऑल्सो हेल्प यू टू लाइक क्रिएट अ नाइस
लिंक्डइन प्रोफाइल, नौकरी प्रोफाइल, एंड इंटरव्यू में भी आपको हेल्प करेंगे। इंटरव्यू में भी हेल्प करेंगे मीनिंग मॉक इंटरव्यूज एंड ऑल बोलेंगे, आप कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाएंगे। सुदीप अगेन सेज हाउ इम्पोर्टेंट इज एमएल फॉर डीएल। एमएल थोड़ा इजी है, अगर वो सीख लेते हो तो डीएल समझने में आसान जाएगा। बट काफी कॉन्सेप्ट्स, छोटी छोटी कॉन्सेप्ट्स जो आप एमएल पे सीखते हो वो डीएल में आपको समझेगी। लेकिन अगर आप डायरेक्टली भी डीएल शुरू करते हो, डीप लर्निंग, तो देयर इज नो हार्म, आपको समझ तो आ ही जाएगा एंड ऑफ द डे। उसमें कुछ चीजें हैं जो नहीं समझ में तो आ ही जाएगा, ठीक है। बट इट इज आइडियल टू गो फर्स्ट फॉर मशीन लर्निंग एंड देन गो फॉर डीप लर्निंग। सो हमारा फ्लो वही रहेगा, हम पहले मशीन लर्निंग पे जाएंगे एंड देन वी विल गो फॉर डीप लर्निंग, ठीक है। some more questions from anyone, some more questions, how important, अच्छा वही है, if we are good, so let me just push this. So I'm pushing this with it and day 48 of teaching. Okay. Okay, how is the course duration, sir? So usually this course is for 6 month. तो 6 month में हम ये पूरा कवर करेंगे। तो अभी जो हमारा मॉर्निंग बैच है विच इज ऑलरेडी 2 months अवे, डे 3, फाइल 3 इज ऑल्सो एडेड, आज का जो फाइल है वो भी ऐड कर दिया। तो यूजुअली हमारा जो फी है 2 महीने तो हो चुका है, ठीक है। 2 months हैव बीन पास्ड, तो और 3 या 4 मंथ में हो जाएगा कंप्लीट पूरा डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, एनएलपी, जनरेटिव एआई। एंड देन उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, क्या स्टार्ट करेंगे, maybe we'll start like mock interviews and resume building और वो सारी चीज़ें, ठीक है, वो सारी चीज़ें। So this how long the course is. So that is all guys today. So if you have some more questions, feel free to DM me. इस group में I am the admin. My name is, so usually I drop this message. We can talk on the WhatsApp as well. Okay. Alright guys, see you tomorrow in the next lecture. Till then, सब्सक्राइब कर लो यूट्यूब चैनल को, एंड इफ़ यू गो थ्रू दिस नोट्स, ये कम्प्लीटली बहुत मेहनत से बना है, इसको स्टार कर देना एंड ज्वाइन द ग्रुप गाइस फॉर द नेक्स्ट कमिंग लेक्चर्स एंड आई ड्रॉप द व्हाट्सएप लिंक, यहाँ पर मिल जाएगी गाइस, यहाँ पर पोस्ट में भी मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। पोस्ट में सबसे पहला पोस्ट यही है, व्हाट्सएप लिंक, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी आपको लिंक, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। सो रेज अ रिक्वेस्ट, आई विल अप्रूव, ठीक है। रेज अ रिक्वेस्ट, आई विल अप्रूव। और कोई भी स्पैम मत करो यार ग्रुप में, ठीक है। सबको अलाउ किया है कमेंट चैट करने के लिए। आस्क क्वेश्चंस ओनली, ठीक है। आस्क क्वेश्चंस ओनली इफ यू हैव क्वेश्चंस, any question related to career and growth. All right, see you guys tomorrow. Bye bye, love you guys, thank you for attending. Thank you। तो ये दिख नहीं रहा था क्या? नोट्स किधर मिलते हैं? अरे नोट्स, अच्छा मेरा स्क्रीन डेटा बुक नहीं हो रहा था। मैं यहाँ प्रो मैक्स से स्ट्रीम कर रहा हूँ, अभी भी ऐसा मैंने तक छोड़ दिया। सो नोट्स आपको ग्रुप में मिल जाएंगे और गिटहब पे भी मिल जाएंगे। नोट्स आपको ग्रुप पे मिल जाएंगे, गिटहब पे भी मिल जाएंगे, यहाँ पर दिखा देते हैं। गिटहब पे नोट्स है,
हाँ, NumPy के अंदर ये तीनों लेक्चर्स, आज का भी लेक्चर, ये थर्ड लेक्चर ऐड कर दिया है। एंड आपको लिंक मिल जाएगी, ये अपना चैनल है, ये चैनल, और इसके अंदर ये पोस्ट में आपको व्हाट्सएप की लिंक मिल जाएगी। यहाँ पर बोल रहा था मैं, दिस वन इज़ अ व्हाट्सएप लिंक एंड दिस वन इज़ अ, यहाँ पर आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी उप्स की। सिमिलरली हम नमपाई की भी क्रिएट करेंगे, और ये सारे नोट्स यहाँ पर है, व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल देना रिक्वेस्ट, मैं अप्रूव कर देंगे, ठीक है। यहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, और ये सेम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी इस लाइव के मिल जाएगा। ठीक है गाइस, ऑलमोस्ट काफ़ी लेट हो चुका है। सी यू, ओके।